Hello everyone, welcome to this next edition of Market Ruburu. Today I have a slightly laid back investing approach where it is not a very active trading at all, but this will definitely help people who want to invest for the long term in the market and don't need to look at their holding on a day-to-day basis. And I have with me Brijesh Bhatia from Bombay. And Brijesh is a person who has almost 18 years of experience in the market. He started with the commodities market, and first 7-8 years he spent in commodities, and after that he's into equities. And one good thing about him is he's multi-talented in terms of analyzing the market. In fact, the first time I heard the word harmonics was from him, since I know him for almost 10 years now. And I didn't know what is harmonics that time, and I only knew the birds, bat and Gartley, and all the birds which he talks about. But it is what is called in scientific terms, it is the harmonics study. And then he also introduced Wyckoff to me. Wyckoff also is another great study which is good for long term. And in the early days when I got to know him, I still remember very distinctly one stock which he had told me. I think it was based on harmonics. He will confirm it. I still remember he had told me Dishman Pharma, which was around 40-50 rupees. And yes, he had told me that within 2 years it will cross 300. I said, you're joking. How can anyone even say something like this? I mean, I never look at extreme targets. I don't take any extreme targets seriously. But within 2 years, Dishman did 360, I think. I think it is delisted now, if I remember correctly. But it did 360, and then I started believing that yes, this harmonic study is something which needs to be looked at seriously. Though I tried to study it, but his study is so much in depth that just show him a chart, and within a minute he'll tell you whether there is a pattern or not, without even plotting the ratios, which is a very integral part of harmonics. Even without plotting the ratios, he'll tell you whether there is a bullish or bearish harmonic in that chart or not. That is his expertise in the topic now. So welcome, Brijesh. What are we going to talk about today? Hi, sir. Thanks for the introduction. And I'm surprised that you still remember Dishman Pharma. I guess it was अरे मेरा memory 2014. ऐसे है, क्या करेंगे? Yeah. So it was, yes, 365. I guess we spoke around 65 rupees or 365 हो गया था, फिर demerge हुआ and then relisted again. But yes, Right. that's the history. Today we'll be discussing something interesting which investors don't feel confident of using technical analysis and doing investing. This was an idea just I got when I was doing long-term charts, weekly charts, monthly charts. तो ये एक आइडिया आया कि लेड बैक इन्वेस्टिंग एक स्टॉक से ट्राई किया था. आई गेस 2014 वाज द फर्स्ट ट्रेड जहां पे मैंने ये स्ट्रेटेजी पे ट्रेड लिया था. आई स्टिल रिमेम्बर इट वाज समथिंग अराउंड टेक महिंद्रा एंड टीसीएस. जनरली कमोडिटीज करियर था मेरा स्टार्ट में 2012-13 तक. सो मिड कैप्स में शायद आई वाज नॉट मच दैट मच कॉन्फिडेंट. सो लार्ज कैप में जो फिल्ट्रेशंस आए थे I got confident and ये strategy तब से मैं ट्रेड कर रहा हूँ. So initially started with 10,000 rupees. चल 10,000 rupees से हम स्टार्ट करते हैं, एटलीस्ट रिजल्ट समझिएगा क्या है. एंड देन इट वेंट ऑन इंक्रीजिंग द कैपिटल. पोर्टफोलियो थोड़ा अच्छा खासा बिल्डअप हो गया. सो बेसिकली दिस इज अगेन अ लेड बैक. एवरी वीकेंड एक बार स्ट्रेटेजी चेक करना है. So I generally do it on every Saturday night or Sunday morning or generally एक फ्राइडे का क्लोज आ गया तो फ्राइडे रात को कोई बैठा है. तो अगेन एंड थैंक्स टू प्रशांत ऑल्सो, उसने मेरे को ऑटोमेटेड करके दिया था ट्रेड पॉइंट में लॉन्ग टाइम बैक. एंड वी स्टिल नाउ हैव इनटू द आई गेस यू कॉल्ड आरजोन. सो आरजोन पे भी ये स्ट्रेटेजी अब है. सो अगेन आई एम थैंक्स टू प्रशांत, उसने मेरा काम पूरा, जो आई वाज यूज्ड टू चेक 500 निफ्टी 500 स्टॉक एवरी वीकेंड के किस स्ट्रेटेजी में कैसे आ रहा है, कौन सा स्टॉक्स आ रहे हैं. एंड प्रशांत ने एक सिंगल क्लिक पे मेरे को करके दिया था. सो आई एम थैंकफुल टू प्रशांत एज वेल फॉर दिस. मतलब जैसे वो स्लाइड में देखा है वैसे सीरियसली स्विमिंग पूल के बाजू में बैठ के आप स्कैनिंग कर सकते हो. या अगर आपको याद होगा तो आई गेस प्री लॉकडाउन 2018-19 में शायद हम लोग लोनावाला एक मीट किया था, तभी भी हमने ये रन किया था स्विमिंग पूल के बाजू में बैठ के, आपको याद होगा तो. एंड या सो उसमें आई गेस उस टाइम पे वी गॉट LNT बाय, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. And yes, LNT I guess 700, I'm not remember the exact price, but वहां से तो भी all time high पे है. तो yes, एकदम I would say and I guess अभी मैंने बहुत बार ये स्ट्रेटेजी शेयर भी किया है बहुत लोग से, and most of the people are using as well. बहुत सारे लोग से फीडबैक भी आता है कि yes it is going good.
and I guess we discuss this in Manthan, and most of the people are सागर को जाके पूछते हैं स्ट्रेटेजी हमको लोड करके दो. So that's the attraction the strategy is getting, and it's a simple, very simple strategy. We have to only use 2-3 tools बस. Yeah. तो क्या rules क्या है? Yeah. So first, only we are using only tool called RSI. ठीक है, RSI तो सबको मालूम है. So मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इजी फिल्ट्रेशन स्टॉक. इसका मेन एडवांटेज क्या है, a single click within a 5 seconds whatever. मैं निफ्टी 500 करता हूँ तो 500 स्टॉक्स में मेरे को हार्डली 1.5-2 मिनट्स के स्कैन लगते हैं. जो स्टॉक्स रहेंगे वो स्कैन करके हो जाते हैं. एंड इफ आई जस्ट यूज दी स्ट्रेटेजी, फर्स्ट मैं वीकली चार्ट पे कर रहा हूँ बिकॉज इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी है, तो डेली पे मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन 5% मूव, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन 20% मूव. मेरे को चाहिए कि स्ट्रेटेजी में मेरे को लॉन्ग टर्म अच्छा खासा पैसा देके जाए. आई एम यूजिंग डॉनचन चैनल. डॉनचन चैनल क्या होता है मैं एक बार एक शॉर्ट में बताऊंगा. एंड आई एम यूजिंग RSI 100 पीरियड. ठीक है, बहुत लोग को मैंने सुना है RSI यूज करते हैं 14 पीरियड के ऊपर कभी गए ही नहीं है. एंड आई एम श्योर 99% ओवर 99% लोग को मालूम नहीं है कि RSI 14 यूज क्यों होता है, पहली बात तो. तो आई एम यूजिंग RSI 100 ओवर ईयर. तो 100 वीक ले रहा है, मतलब आप समझ लो कि 2 साल का ये ट्रेंड ले रहा है एक डिफाइन करने के लिए. RSI 100 यूज कर रहे हो ऑन वीकली, दैट मींस this will not the stocks which are listed in the last 2 years will not qualify for this at all. No, it will not qualify at all. ठीक है, तो एक एडवांटेज भी हो सकता है, जैसे पेटीएम, जोमेटो हमने देखा है, नायका हमने देखा है, तो ये सब आपके लिस्ट से हट जाएंगे. ठीक है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि लिस्टिंग के बाद स्टॉक्स अच्छा खासा रन अप हो जाता है. बट आई एम जस्ट यूजिंग, जैसे हम टेक्निकल एनालिसिस में कहते हैं कि वी आर यूजिंग प्राइस हिस्ट्री टू आइडेंटिफाई द फ्यूचर ट्रेंड. ठीक है, तो हमारे लिए अगर प्राइस डेटा नहीं है, सो वी आर नॉट अ फंडामेंटल, सो के बेसिस पे कि कंपनी में क्या चेंज हो रहा है, मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, पी चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है. वी आर अ टेक्निकल एनालिस्ट, सो हमको प्राइस डेटा पे कर रहे हैं. तो द मैक्सिमम प्राइस यू गेट, द मोर एडवांटेज इट इज. सिंपल टर्म में डॉनचन चैनल समझा देता हूँ. सो इट वाज डेवलप्ड बाय रिचर्ड डॉनचन. हमको यहाँ पे अगर आप कोई भी एक्स पीरियड ले रहे हो, जैसे बॉलिंगर बैंड आपने यूज किया होगा तो 20 पीरियड लिया होगा, तो बॉलिंगर क्या करता है, आपका 20 पीरियड का बैंड करता है और 2% डिविएशन अपसाइड, 2% डिविएशन डाउनसाइड. डॉनचन चैनल क्या करता है, अगर आपने एक्स पीरियड लिया है, ऐसे समझ लो 20 पीरियड लिया है, तो बाय डिफॉल्ट जनरली डॉनचन चैनल इज 20 पीरियड. तो 20 पीरियड आपने लिया है तो लास्ट 20 बार्स का हाई प्लॉट करेगा, लास्ट 20 बार्स का लो प्लॉट करेगा. तो एक सिंपल टर्म में आपको यहाँ पर है कि मैं यहाँ पे 62 पीरियड ले रहा हूँ, मतलब लास्ट एक साल का वीकली, मतलब 62 मतलब 52 वीक्स हमारे साल में है, तो मैं 62 वीक्स ले रहा हूँ. तो आई एम टेकिंग 13 महीना. तो द रीजन टू टेक 13 महीना इज के 13 मंथ्स इज बेसिकली अ फिबोनाची नंबर. ठीक है, तो जनरली एक साइकिल होती है वो हमेशा 13 मंथ्स के साइकिल में चलती है प्राइस एक्शन. तो इसीलिए मैंने वो 62 पीरियड लिया है. अगर 62 पीरियड का वो लो होल्ड करता है तो आई विल कंटिन्यू टू राइड द ट्रेड. किसी ने पूछा 62 क्यों, 60 क्यों नहीं, 64 क्यों नहीं, उसके लिए दैट इज योर चॉइस, राइट? इट इज माय चॉइस. से मैंने 62 इसीलिए है कि 62 इज आल्सो फिबोनाची नंबर, गोल्डन रेशियो, एंड वो 13 मंथ्स में कन्वर्ट होता है, व्हिच इज अगेन अ फिबोनाची नंबर. ओके फाइन. ओके, सो दैट्स द रीजन मैंने वो 62 पीरियड लिया है. सो मैंने बहुत ट्राई किया, 55 भी ट्राई किया था, 60 भी ट्राई किया था, 80 भी ट्राई किया था, 100 भी ट्राई किया था. आई गॉट अ बेस्ट रिजल्ट 62 में. द रीजन इज, दो क्राइटेरिया मैंने लिया. मेरे को ट्रेड राइट करते करते एक रिस्क में मैनेज करनी है, मतलब वो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस भी ऊपर होते जाने चाहिए अगर ट्रेंड में कंटिन्यू हो रहा है तो कंसोलिडेशन का फेज है वो मुझे एलिमिनेट करना था. ओके, सो माय होल्डिंग पीरियड गोज स्लाइटली लोअर. ओके, एंड RSI टू मेजर द स्ट्रेंथ. तो RSI बेसिकली क्या होता है, एक स्ट्रेंथ मेजर करता है. तो मैं 2 इयर्स का 100 पीरियड RSI, 100 वीकली RSI ले रहा हूँ, ताकि मैं 2 साल का पीरियड ले रहा हूँ. तो अगर वो 2 साल में स्टॉक ट्रेंडिंग है तो मुझे मालूम है कि वो फ्यूचर में ट्रेंडिंग हो सकता है. सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, सुजलॉन बहुत सालों से एक रेंज में चल रहा है. ठीक है, तो उसमें अगर आपको 5% 10% में इंटरेस्ट है, 20% में है, तो यू कैन लुक एट. बट मेरे को 5% 10% में इंटरेस्ट नहीं. मेरे को चाहिए कि स्टॉक्स एटलीस्ट 80-100% देना चाहिए, या 2x 3x 4x होना चाहिए. तो मुझे ये स्ट्रेटेजी का इन्वेस्टिंग का काम है. सो दैट्स द रीजन आई हैव टेकन दिस RSI. ठीक है, स्ट्रेटेजी रूल समझा देता हूँ, बहुत सिंपल है. ठीक है, आई एम टेकिंग वीकली 100 पीरियड RSI. RSI का क्लोज 55 के ऊपर होना चाहिए.
So every Okay. Friday का close, okay, so Friday or Thursday, whatever the weekly closes, so generally तो Friday ही होता है, okay, on a rare case it's Thursday. तो Friday का जो weekly candle का close होगा उसका RSI it's to be about 55. Now the reason to take 55 is because अगर आप 100 period RSI ले रहे हो तो 50 is basically median, bulls and bears both are fighting. 55 में क्या होगा ना, आपको एक strength में मिलेगी प्लस मोमेंटम भी बिल्ड हो रहा है उस चार्ट्स पे। तो बहुत Yeah. बार ऐसा होता है कि आरएसआई ट्रेंड्स अराउंड 50, 52, 53, 54 बहुत टाइम होता है। तो 55 का मुझे रीजन इसीलिए है कि बैक टेस्टेड किया है तब, तो 55 के ऊपर जब स्टॉक्स निकलता है वीकली आरएसआई के ऊपर तो मोमेंटम थोड़ा फास्टर स्टार्ट होता है, एंड दैट्स द Okay. रीजन वो 55 मैंने लिया। ठीक है, दैट्स द ओनली एंट्री क्राइटेरिया फॉर मी। ठीक है, एग्जिट क्राइटेरिया में क्या रह रहा है, द सेम 100 पीरियड आरएसआई व्हेन इट फॉल्स बिलो 50 आई विल एग्जिट दैट ट्रेड, or Okay. try hitting the lower band of Donchen channel 60 period. Now why Donchen period ले रहा हूँ, because मुझे वो ट्रेलिंग सिस्टम यूज करनी है। मैं चार्ट्स पे Yeah. दिखाऊंगा तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि why I'm taking Donchen channel and why not RSI। तो RSI Okay. में क्या होता है ना, इनिशियली आई स्टार्टेड विद RSI ओनली, 50 RSI के नीचे जाएगा तो वो होल्डिंग पीरियड का इशू बहुत हो रहा था। कभी कभी स्टॉक क्या हो रहा था कि स्टॉक वो 20% बैंड में ट्रेड कर रहा है 1 साल 2 साल 1.5 साल के लिए, ऊपर जाता है 20% डाउन आएगा 20%, तो आरएसआई क्या होता था 56 57 जाएगा, वो फिर आके 52 53 हो जाएगा, तो मेरा होल्डिंग पीरियड बहुत बड़ा हो रहा था। एट द सेम टाइम वो डॉनचेन चैनल क्या करेगा, आपका हायर एंड हायर जाएगा, वो लोस पे आ जाएगा, तो एट सर्टेन पॉइंट इन टाइम यू विल गेट एन एग्जिट, तो आपका Yeah. होल्डिंग पीरियड वो कम हो जाता था। ओके, सो जस्ट लुक एट दिस एग्जांपल। ठीक है, सो ब्लू लाइंस जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है वो डॉनचेन चैनल है, एंड स्लाइटली आई एम यूजिंग द ओल्डर चार्ट ड्यू टू सम सेबी रेगुलेशंस। ठीक Yeah. है, तो आई एम नॉट टेकन द लाइव चार्ट्स एज ऑफ नाउ। सो अगर आप इस रिलायंस का चार्ट देखोगे तो मैंने शायद मैंने सब थोड़े ओल्डर चार्ट लिए ड्यू टू सम सेबी रेगुलेशंस, और यहाँ पर आप देखोगे तो ब्लू लाइंस जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है वो डॉनचेन चैनल है। हमको फर्स्ट टॉप वाली ब्लू से कोई इंटरेस्ट नहीं, हमको बॉटम वाली ब्लू से इंटरेस्ट है, जहां पर मेरा स्टॉप लॉस ट्रेलिंग सिस्टम यूज हो रही है। Right. और नीचे अगर आप देखोगे तो ये आरएसआई है मेरे ब्लैक, और मैंने जो ब्लू लाइन लगा के रखी है आरएसआई को 55 पीरियड की, 55 लेवल है, एंड जो Yeah. रेड लाइन है वो 50 लेवल है। तो मुझे वो एंट्री एंड एग्जिट की दोनों लेवल्स आपको चार्ट्स पे क्लियर विजुअल हो जाता है। ठीक है, नाउ यहाँ पर आप देखोगे तो 2003 में, ओके, उसके पहले रिलायंस वाज ट्रेंडिंग इन अ रेंज, ओके, एंड दिस आर एडजस्टेड एंड ऑल द स्टफ। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे फर्स्ट टाइम 2003 में 95 पे रिलायंस आई गॉट अ बाय, okay, Yeah. and it continued to head higher. We saw 4 digit mark also after 95, so अगर मैं से देखने जाऊं hindsight पे तो it was 10x, okay, I'm not Yeah. looking at the hands end level, ठीक है, and I am using just the trailing system। तो 2008 के fall में it went to below 400 levels, and so still I got 4.5 times। ठीक है, उसके बाद Yeah. रिलायंस में इफ यू नो, आप भी सर इतने साल से मार्केट में हो, रिलायंस ने 7.5 साल तक कुछ नहीं किया था, एंड इफ यू रिमेम्बर हमने So बात भी की थी completely, 2014-15। completely सो गया था। Yeah. या ओके, सो मेरे को ये याद है आफ्टर 7.5 years, ओके, अगर टेक्निकल टर्म में अगर वो कोई एस्ट्रो फॉलो कर रहा है तो हम 7.5 इंडिया में बोलते हैं, हिंदुइज्म के 7.5 लग गई थी स्टॉक पे। ओके, तो आपको याद होगा तो मैंने आपको बोला भी था सर ये अब निकलेगा तो हम लेंगे, एंड आई गेस इट वाज 960 प्री स्प्लिट। ओके, Yes, I remember. एंड यस, ओके, तो यहाँ पर ये उस समय ये ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर अच्छा, 560 में प्री सेकंड पे now I realize why you had given the target of 2023. आया। 7.5. या या Okay. ओके, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 560 पे यहाँ पर मुझे वापस बाय आया था। यहाँ पर देखिए Yeah. 55 पे एक वीकली क्लोज था, बट एंड इट कंटिन्यू। ओके, यहाँ पर मेरे लो हिट्स नहीं हुए थे, इट्स स्लाइटली अबव दी लोस, इसलिए मैंने वहां मार्क नहीं किया, आई गॉट इट डायरेक्टली एट एग्जिट इन 2008। तो 4-5 साल में स्टॉक वाज मोर देन डबल, and then it was dividend and all those stuff, so I guess it was 135 140% कुछ तो था। ओके, नाउ अगेन बैक इन 2020 जहां पे वी शेप रिकवरी थी, 1405 का लॉन्ग है, अभी तक वो लॉन्ग कंटिन्यू हो रहा है रिलायंस में। अच्छा, री एंट्री So होगी। yeah, 1405 is current long which is going on, and we are at around 25 2600 2400। 2400, yeah. yes, so अगर हम देखेंगे तो terms में we are nearly at double onto the Reliance, and we are nearly there। ठीक है, Havels, this Yeah. was the one of the trade, मैंने यहाँ पर री एंट्री भी की थी, बट उसका एंट्री इनिशियल एंट्री वाज 56 ओवर ईयर। ओके, सो व्हेन आई स्टार्टेड इन 2013-14 मैंने ये स्टॉक में यहाँ पर एंट्री की थी।
हेवल्स मुझे इतना आइडिया नहीं था फ्रेंकली, सो आई स्टार्टेड विद 10,000 जो मैं इनिशियली स्टार्ट किया था. सो दिस वाज द टाइम यहाँ पर ये हेवल्स बॉटम से री एंट्री आई थी स्टॉक में यहाँ पर. ओके, एंड देन इट वेंट ऑन. 56 वाला एंट्री 622 पे एग्जिट आई थी. Okay, so nearly 10x in 7, 8, 10 years. Okay. Yeah. Then re-entry was 820 again, which is still continuing. 2021 में आई थी entry. End of 2020 December, and it's still going higher and higher. Yeah. It works on large cap TCS. ऐसे मुझे था TCS. I got re-entry over year 2014 में मैंने जब स्टार्ट की थी 13-14 में. So I entered TCS जब मेरा पैरामीटर में आया था. And I was initially just a trial and error पे था, but ये first leg इसका था 2009 में 270 पे, which got exited at 1166. 1480 का re-entry, 1800 exit, 2375 का which is still going on. Okay, so we are at around 3200 levels now. Okay, yeah. So 2 साल में अगर TCS जैसे स्टॉक आप देखोगे तो which is 40-45% up. Okay, so on a rare case ऐसा होता है. टाटा स्टील, दिस इज अगेन प्री स्प्लिट. अभी जो 110 115 का भाव चल रहा है, बट दिस इज प्री स्प्लिट. 105 का एंट्री, 439 का एग्जिट इन 5 years. 520 का एंट्री आई गॉट एग्जिटेड ओवर ईयर 479 में. ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्टॉप लॉसेस मेरे होते ना, इट डजंट गो बियॉन्ड 20%. ऑन अ रेयर केस 25-30% होता है, बट ऑन एन एवरेज वो 20% के अंदर ही रहता है अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो. For a long-term investment, 20-25% is not okay. I mean, that's okay, isn't it? Fine. Yeah, that's fine. Yeah. तो मैं वही बोला जी, मतलब ऑन अ रेयर के एवरेज मेरा गिनने जाऊंगा तो 15-20% के बीच में आता है. ऑन अ रेयर केस कोई 30% गया, बिकॉज अगर वो सडन फॉल आ गया तो आपका डाउनचाइन चैनल थोड़ा दूर हो जाता है सडन फॉल के लिए. Correct. और आरएसआई में थोड़ा इम्पैक्ट, अगर वो सडन फॉल आता है तो आपका आरएसआई फास्ट इम्पैक्ट करेगा, तो वो तुरंत 55 से नेक्स्ट वीक 50 चला जाएगा. बट अगर वो स्लो एंड ड्रॉप है तो जनरली वो 27, 28, 30% तक जाता है. सो आई गेस मैंने अभी तक 14 से 2023 अभी तक में आई हैव डन अराउंड 112 ट्रेड्स. उसमें से about 20% वाले which is only 7. So that number is also smaller. हाँ, because वो ट्रेलिंग सिस्टम यूज होता है मेरा. 7 out of 120. 112 में से जो 30 about 20% वाले वो 7 है सिर्फ. ओके, सो बाकी स्टॉप लॉस ट्रेलिंग सिस्टम में क्या होता है ना, आपका वो ऊपर जाने के बाद बहुत बार ऐसा होता है कि 1-2% में एग्जिट हो गया या 10% में एग्जिट हो गया. हाँ, मतलब आई नीड टू क्लैरिफाई हियर कि ऐसा नहीं कि बाकी 105 में प्रॉफिट ही हुआ था, उसमें भी लॉस हुआ था, लेकिन वो नॉट मोर देन 20% लॉस. Yes, it was less than 20%. So average is 15-20% के बीच में आता है. लोगों को लगेगा दिस इज अ 95% हिट रेट, वैसा नहीं है. ना. So hit rate is somewhere around 63-64%. So वैसा. So 95% hit rate is not the right. It's around 63-64% hit rate है मेरा. तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो V-shape रिकवरी 2020 में आई थी, उस समय नवंबर दिसंबर और अर्ली 2021 में जो ट्रेड्स आए थे, वो 2022 के जो मिड का फॉल था, उसमें बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हो गए कि हिट हो गए मेरे एट द कॉस्ट और स्लाइटली बिलो द कॉस्ट 8-10% लॉसेस में. ठीक है, बहुत सारे ट्रेड है जो अभी भी कंटिन्यू कर रहे थे. सो इट इज दैट के मोर देन 20% वाले इज अ स्लाइटली लोअर नंबर, बट देयर आर नंबर्स व्हिच आर बिटवीन 0-20%. ओके, एंड प्रॉफिटेबिलिटी वाइज तो 2x 3x कुछ तो मिले ही होंगे. यस, बहुत सारे जैसे TCS जैसे स्टॉक है व्हिच इज अराउंड 40-45%. रिलायंस नियरली डबल के आसपास चल रहा है. So there were few stocks, जैसे ABB स्टॉक आया था मेरा 16-1700 में, which is still more than double. I'll show that example as well. Okay. So ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन मार्केट्स पे काम करता है. ये स्ट्रेटेजी मैंने इंटरनेशनल पे भी ट्राई की थी. इंटरनेशनल ट्रेड्स नहीं करता हूँ मैं, बट यस मैंने ट्रायल बेसिस को रन किया था. एंड अल्फाबेट पे ये जैसे गूगल है, अच्छा खासा ट्रेड करा है. तो रिसेंट ट्रेड इज 1385. उसके बाद स्टॉक इज अप, we saw a fall. उसके बाद एक स्टॉप लॉस हो गया था. Amazon है, 96 वाला ट्रेलिंग सिस्टम था, which is still going on. अगर आप यहाँ पर देखोगे 210 से probably yes 10 के बाद जो ट्रेड आया था, it's been 13 years हिट नहीं आई थी. So and 13 years में गूगल जैसा स्टॉक इज 100 वाला 4000 3000 समथिंग चल रहा है. ठीक है, 3700 and it went down.
हाँ दिखने में बहुत अच्छा दिखता है बट होल्डिंग पेशेंस चाहिए। यस 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 होल्डिंग पेशेंस है सर, इसीलिए इन्वेस्टिंग है कि यस या तो ऐसी एडवांटेज ऐसा है कि आप इसको एक बार आपने पोर्टफोलियो में ले लिया, इफ इट्स कंटिन्यूइंग रनिंग और आपका ये ट्रेलिंग सिस्टम यूज हो रहा है, तो ऐसा नहीं है या कि अगर मैं अगर 96 वाला दूंगा तो अगर मेरा ट्रेलिंग सिस्टम बीट होगा तो 2800 पे होगा। करेक्ट। ठीक है, सो 2881 जो अर्ली स्टार्ट ऑफ 2022 में था, तो अभी वो थोड़ा हिट हो गया हो सकता है। ठीक है, अनदर एडवांटेज इसके ये वेल्थ जो टॉक्सिक स्टॉक्स होते हैं, वेल्थ डिस्ट्रॉयर होते हैं, उसमें फायदा है। ठीक है, तो इसमें जैसे मैंने सुजलॉन कहा, या 2008 के बाद सुजलॉन में कभी ट्रेड ही नहीं आया। ओके। ओके, सो हाइंडसाइट में लगता है कि अरे सुजलॉन है तो आपने एग्जांपल ले लिया, बट अगर आप देखोगे तो 2008 से कोई ट्रेड नहीं आया इसके अंदर। RSI, that blue line is ऊपर the trigger, right? यस 55 है, 55 वैल्यू है ब्लू लाइन का, तो उसके उसके ऊपर ऊपर गया ही जाएगा नहीं। तो ही मैं ट्रिगर नहीं गया 2008 से। मतलब 2008 में तो आप मार्केट में थे, मैं तो कमोडिटी वाला था, बट स्टिल सुजलॉन वाज डार्लिंग ऑफ द मार्केट्स। हाँ हाँ, कोई किसी को भी पूछो सब लोग बोलते थे कि सुजलॉन ले लो, सुजलॉन ले लो फॉर लॉन्ग टर्म। यस यस, तो ये ऐसा है, तो उसके बाद अभी तक बाय नहीं आया, तो पेनी स्टॉक तो वो अभी हुआ, बट इनिशियली इट वाज मार्केट्स फेवरेट। दूसरा दूसरा फेवरेट एग्जांपल दिखाओ, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग ठीक है, अबाउट। यस बैंक ठीक है, सी यस बैंक फ्रैंकली 2014 में ये बाय था, मैंने लिया नहीं था, इट वाज द फर्स्ट बाय ओवर ईयर 14 में, बिकॉज 50 से ऊपर ये फर्स्ट टाइम इधर आया था, एंड इट वाज ट्रेडिंग या समवेयर अराउंड 120 130 रुपीस। ओके, ये ऊपर कंटिन्यू हुआ, इसमें एग्जिट मेरे को आई थी यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो इस वाले बार पे, विच वाज स्टिल 270 280 रुपीस। ओके। ओके, उसके बाद और कभी एंट्री आई उसके नहीं, बाद कोई, हाँ ओके। कोई एंट्री नहीं, 270 के बाद कोई एंट्री नहीं स्टॉक में, एंड स्टिल कोई एंट्री नहीं है। ठीक है, वोडाफोन आइडिया, इसका RSI या देखो फ्लैट लाइन पे चल रहा है। फ्लैट लाइन पे, मैंने वही बोला सर, मैंने इनिशियली जो प्रॉब्लम मुझे हो रही थी जो ट्रेलिंग सिस्टम में, अगर ये स्टॉक ऐसे रेंज में चला जाता था ना, तो जो वो आरएसआई था वो 54 55 56 53, तो 50 पे मेरा एग्जिट ही नहीं आता था, तो दैट्स द रीजन मैंने वो डॉनचन चैनल यूज किया। ओके। बिकॉज अगर आप देखोगे तो आरएसआई फ्लैट है, तो आपका होल्डिंग पीरियड 2020 अगर देखने जाऊंगा तो लेट 19 से वो फ्लैट लाइन पे ही है, या तो 4 इयर्स का मेरा होल्डिंग पीरियड चला जाता है ना, तो इट्स वेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। करेक्ट। अनदर लॉन्ग टर्म मल्टी बैगर फेवरेट। स्टिल पीपल आर बैगर से अच्छा बैगर हो गए ओके, यस, सो देयर आर सम फेल्ड सेटअप एज वेल, सो कोई सिस्टम 100% फुल प्रूफ तो होती नहीं है। करेक्ट। सो देयर आर सम फेवरेट एंड दिस आर पर्सनली ट्रेडेड, जहां पे मुझे लगा कि यस दिस सिस्टम इज नॉट वर्किंग ऑन द स्टॉक्स। भारती एयरटेल इज वन ऑफ देम, आई गॉट अ ट्रेड एट 435 346 एंड एग्जिट। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 435 वाला स्टॉक्स 346 नियरली 20% एग्जिट। या ठीक है, तो अगर आप द रीजन इज के आरएसआई का देखिए ये फास्टर, अगर ये फॉल देखोगे तो विच वाज फास्टर फॉल, तो आरएसआई का जो मेरा फास्टर फॉल था उसमें आरएसआई ने एक जल्दी एग्जिट दे दिया, सो दैट्स एन अगेन एन एडवांटेज। ठीक है, करेक्ट। 455 का एंट्री, 401 पे एग्जिट, होल्डिंग पीरियड ऑफ नियरली आई गेस 13 14 मंथ्स था, 10% लॉस। 608 वाला विच वेंट हायर, बट अगेन यहाँ पर मैं देखूंगा तो लॉसेज आर नॉट दैट मच, 10-20% विच इज मैनेजेबल एंड इन्वेस्टिंग, बट मेरा होल्डिंग पीरियड थोड़ा बढ़ रहा था, विच वाज नॉट मेकिंग मी गुड एज एन इन्वेस्टमेंट्स। या ठीक है, अगर मैं ये एग्जांपल देखूंगा इन्फोसिस, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 94 वाला 220 4x, सॉरी 2x, 279 वाला या 310, 420 वाला 504, 625 वाला 650, अगर यहाँ पे देखोगे तो पैसा बन रहा है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं बन रहा है, बट इट इज नॉट बीटिंग द एफडी रिटर्न्स एज वेल। तो 279 वाला करेक्ट। 310 नियरली 2.5 3 इयर्स, तो अगर मैं 2.5 3 इयर्स में 10% कमा रहा हूँ तो विच इज नॉट बीटिंग माई एफडी रिटर्न्स, तो इक्विटी इज नॉट, मतलब यस in a way, if you look at this long term chart, it can be seen that it has gone up from 40 to, I mean, it is a 20 bagger, but still it was not satisfying your conditions. यस, इट वाज नॉट सेटिस्फाइंग माय कंडीशन, तो मेरा होल्डिंग पीरियड एफडी रिटर्न्स बीट नहीं करता था, इट्स नो पॉइंट इन्वेस्टिंग इन रिस्की एसेट्स। Correct.
ऐसा। तो इसीलिए मैंने वो फेल्ड सेटअप में डाला है। बट अगर आप देखोगे तो पैसा वहां पे बन ही रहा है आपका 270 वाला 310, खाली एक ही ट्रेड जिसमें मेरा पैसा डबल हुआ है, ठीक है। सो ये 905 वाला भी ऑलमोस्ट डबल ही हो गया था, बट स्टिल आई गॉट एन एग्जिट एट समवेयर 1250 1260। तो अगर मैं रिटर्न्स देखने जाऊंगा 2020 से 2023, 30% 35% इज नॉट दैट बिग नंबर। ओके, so this the strategy and slightly SEBI का disclaimer है, so this is just an example which I am being showing, and it is not a trade recommendation. Yeah. जरा एक So I always can you show some couple of charts on the setup if I ask, दिखा सकते हैं? Yes, yes, yes. तो आजकल का करंट फेवरेट दिखाओ, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट। या सो ये जो एबीबी मैंने बोला, सो अगर आप देखोगे तो एबीबी में मेरे को फर्स्ट ट्रेड यहाँ पर आया था, विच वाज अगर देखूंगा तो 1600 1700 है ये वाला। अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक अभी भी ट्रेंडिंग में है, विच इज मोर देन डबल नाउ, ठीक है। सो 2 इयर्स में मोर देन डबल स्टॉक, इट्स नॉट अ बैड थिंग, ठीक है। अदानी, ओके, यस, सो यस, अदानी जैसे सर आपने कहा नए वाले सिस्टम्स, यस। तो अदानी में यहाँ पर मुझे फर्स्ट बाय आई थी 400 के आसपास, 230 300 के आसपास, 300, यस, ओके, एंड इट वेंट ऑन। सो मेरा एग्जिट इसमें अगर देखूंगा तो ये जो सडन फॉल है उसमें मेरा एग्जिट हो गया था। हाँ, स्टिल आई मेड व्हाट 4x, 1500 पे मेरा एग्जिट आया था। दिस डॉनचन चैनल वाज, नहीं एक मिनट, तो ये मेरा डॉनचन चैनल था लो व्यूज 1528, 1500 में मेरा एग्जिट आया। सो स्टिल 5x इन व्हाट 3 इयर्स, ओके। और अभी यहाँ पे कोई ट्रेड ही नहीं है इसमें, अगर आप देखोगे तो इट्स स्टिल ऑन अ फ्लैट नोट, ठीक है। और कौन सा, अदानी पोर्ट्स, उसका हिस्ट्री इतना नहीं रहेगा मैम। यस, है। सो अगेन यहाँ पर बाय आया था मेरा 454 470 पे, it got an exit over here which was 650 and still now no trade, ऐसा अगर ये गिनूंगा तो इनफैक्ट उसका RSI अभी फ्लैट लाइन हो गया, ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन है, यस 50 पे। अभी जब फ्रेश ट्रेड आएंगे तब ऐसा। So the main thing about this system is, though you are a master at catching tops and bottoms because of harmonics and Wyckoff, this is exactly opposite to your nature. You catch it only when the trend is established. Yes. And generally इसमें सर अभी देखो सी एडवांटेजेस ये स्ट्रेटेजी का क्या है, जैसे मैंने आपको बताया द रीजन व्हाई आई एम टेकिंग 55। अगर यहाँ पे देखोगे तो स्टॉक वाज कंसोलिडेटिंग फॉर सो लॉन्ग, यहाँ पर आप देखोगे तो स्टॉक वाज कंसोलिडेटिंग। मेरा बाय कब आया, जब मोमेंटम बिल्ड हुआ स्टॉक में, करेक्ट, ओके। सो दैट्स द रीजन 55 RSI इसीलिए ले रहा हूँ कि मोमेंटम मेरे को चाहिए, मेरे को जब ट्रेंड स्टार्ट हो। ITC, यस ITC, yeah, it came by at what 300 rupees. Okay, so already almost 50% हो गया। Yeah, so 29 July 2022, so July 22 में August first week में आपने ट्रेड किया होगा, it's still 50% return, 40%, 40% up, एक साल भी नहीं हुआ है ऐसा। गुस्सा है, मेम सब लोग ने बना के भेज रहे थे ना सर। In fact, that time it was getting ready to break out on your charts. Yes, सर देखो ये कंसोलिडेशन में मेरे को कुछ नहीं ट्रेड आया, जब ये बिल्ड हुआ मोमेंटम तब मेरे को ट्रेड आ रहा है। सो दैट्स एन एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग के साथ वो मोमेंटम, ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है तब वो ट्रेड दे रहे हैं मेरे को। Yeah. So the good thing about this strategy is this can be scanned on TradePoint. In fact, we have a public scanner built in the web TradePoint. Yes. If you go to tradepoint.defineit.com, there is a public scanner with the same name, and whoever wants to use it can use it and scan whichever universe you want, whether it is Nifty 500 or all stocks or Nifty 50 or Nifty 200, whichever stocks, and you can get your own results. And I'm sure this is a very like the title says, a very laid back strategy where you don't have to do anything during the day, nothing for active traders,
But it is said that everyone must have something kind of a long-term portfolio, so where you can carry out your trading activity for short term, but this is for long-term wealth building, right, Brijesh? Yeah, absolutely. So L&T, what we discussed, हाँ, I guess yes, 2018 में था, थोड़ा older data जाना पड़ेगा. हाँ, yes, 17, 18, yes. तो यहाँ पर हमने I guess ये discuss किया था जब L&T was trading somewhere what 1100 rupees. yeah, And it went towards, but वो ठीक है, कोरोना के टाइम पे we got an exit at nearly at cost or slightly lower yeah. at par. So again it, उसके बाद अगर देखूंगा तो मैं वापस उसमें ट्रेड अभी आएगा उसमें. या सो लुक एट ओवर अभी हियर. just आ रहा है, इनफैक्ट करंटली आ रहा है ये क्या? आ गया था, ये ओल्डर आ गया. ट्रेड है, ये ओल्डर चार्ट. सो वी गॉट अ ट्रेड अगेन ओवर हियर इन July 21, 1400 पे, which is still Okay. continuing. Yeah, which is still continuing. Yeah, so 1400 वाला स्टॉक अभी भी 2300 पे है. So it's still अगर देखने जाऊंगा तो over 50% रिटर्न है L&T जैसे स्टॉक पे. As of now it is less, but maybe momentum अभी build up हो रहा है, तो you never know. Yes. Thing which people need to keep in mind is this is not something where you can get a multi-bagger, like a sure shot multi-bagger. So you cannot put all eggs in one basket. It's always better to have a, I mean, if, let's say you have 10 lakhs, keep it as 1 lakh per lot, per stock. And whenever you get any stock, you take it. And it's not that everything should be invested in one, because you never know, the second one might be a multi-bagger. Maybe the third one might be a multi-bagger. You can't rely only on one stock. Exactly. I generally look at के मैं 10 पहले इनिशियली 5 स्टॉक्स का बास्केट लेके चलता था. तो कोई अगर 5 स्टॉक का बास्केट फुल हो गया है तो नो फ्रेश ट्रेड्स. Then I initially added another 5. So I am as of now trading 15 stocks on this. So 15 stocks का बास्केट फुल हो जाता है तो no new trades. So I have to then look for exits. जब तक exits नहीं आता तब तक ट्रेल करते रहो. Because of your knowledge of harmonics, you might be getting a lot of mental exits. इसका top बन गया है. But I still don't prefer that mental exit over here. जो system है, it's better we don't break the rules. That is a very important thing. So this is a completely independent system in itself. Don't confuse it with short-term trading. Yes. So यहाँ पर भी मैंने सिस्टम बना दी है और हमने R zone में भी सिस्टम डाल दी है. So anyone who wants to use R zone, but एक चीज याद रखना, when you're using R zone, हमने ऐसा सिस्टम बनाया है, so you have to scan on weekend, either फ्राइडे मार्केट डेटा के बाद सैटरडे या संडे. अगर आप वो मंडे ट्यूसडे स्कैन करते हो तो बहुत बार ऐसा मिस हो जाएगा आपका कि अगर कोई प्रीवियस वीक में ट्रेड आएगा तो. So what we have done is we have used a system where RSI 55 on a weekly, जो करंट बार है it should be above 55 and previous bar should be below 55. तो क्या होगा ना, अगर आप मंडे मार्केट आवर्स में ट्रेड करके स्कैन कर रहे हो तो बहुत सारे वो जो करंट डेटा है वो करंट वीक का ले लेगा एंड स्टिल द वीक इज नॉट क्लोज्ड. तो वो आपको अगर लेट बैक में यूज कर रहे हो तो कीप इन थिंग्स दैट माइंड के वो थोड़ा टेक्निकल स्टफ है. सो दैट्स द रीजन आई जस्ट के बोल देना जरूरी है. बहुत बार क्या होगा ना, नहीं तो फिर आपको स्टॉक्स अलग अलग लिस्ट में आएंगे. तो जैसे ये IRFC आया था. ओके, सो दिस वाज अगेन लास्ट वीक का RSI अगर मैं देखूंगा, सो इट वाज अबाउट 54. सो अगर ये वीक अभी 55 के ऊपर क्लोज आएगा तो RIFC इसको क्वालिफिकेशन आ जाएगा. ओके, ऐसा. सो देयर आर एन नंबर ऑफ स्टॉक्स जो लिस्ट में आते हैं. सो NTPC वाज द वन. आई गेस NTPC का जो फर्स्ट ट्रेड आया था ना, यस दिस वाज अ पीरियड जहां पर 160 पे आया था एंड व्हिच इज स्टिल ट्रेंडिंग एट 176. नॉट दैट ग्रेट नंबर व्हिच इज कंटिन्यूइंग. तो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है. Yeah. So this is a very good strategy. Like we have said a few times, this is a laid back investing where you don't have to actively monitor it. Maybe once a week is enough. So I repeat, this is not for very active traders. You can have your own trading system for short term, but this is for entirely for long term, which might be even 7-8 years. Like he said, साढ़े साथी का period होता है. So ideal thing is at least 7.5 years you have to hold. So only those who have patience for that kind of holding period, they should venture into this system. But once you start doing that, like he has shown so many good examples, you can definitely get good trades. In fact, they will not be called trades. They will be called buy and hold.
buy and hold kind of strategy. So thank you, Yes. Brijesh, for giving a extremely good strategy, and I hope viewers will benefit and hope all of you like this Market Ruburu session, and do subscribe to our channel, like it and share it. Thank you. Thank you, Brijesh. Thank you, Happy sir. And thanks, Definesh, for inviting.